اس نے اپنی چائے لی اور پھر دروازے میں کھڑی دونوں بہنوں کو بھرپور طریقے سے نظر انداز کرتا آگے بڑھ گیا۔ شازیہ اور امینہ دونوں نے گردن موڑ کر ولی کو دیکھا تھا۔ اس میں کس بات کا غرور ہے بھائی؟ نہ سلام نہ دعا، سارے ایک ہی جیسے ہیں کیا اس گھر میں؟ ولی کے انداز پر تل ملاتی شازیہ اندر آئی اور امینہ سامیہ کے ساتھ والی کرسی پر آ بیٹھی۔ عمل نے خشک پڑتے لبوں پر زبان پھیری تھی۔ اس میں کس بات کا غرور ہے بھائی؟ یہ سامیہ اور کانتا ہیں بھابھی، دونوں میری بیسٹ فرینڈز ہیں۔ اس نے دونوں کی جانب اشارہ کر کے تعارف کروایا تو شازیہ کے ابرو حیرت سے اوپر کو اٹھے۔ یہ بھی فرینڈز ہیں تمہاری؟ کانتا کی جانب اشارہ کر کے پوچھا تو عمل کی مسکراہٹ پھیکی پڑی، مگر کانتا بہت پرسکون تھی۔ جی یہ بھی فرینڈ ہے۔ اچھا بھائی، تم کب سے اتنی بڑی لڑکیوں سے دوستیاں کرنے لگ گئیں؟ اس نے ہاتھ آگے بڑھا کر چائے اپنے کپ میں اونڈیلی تھی۔ امینہ نے بھی مسکرا کر عمل کا پھیکا پڑتا چہرہ دیکھا۔ کیا فرق پڑتا ہے بھابھی، دوست تو دوست ہوتے ہیں نا، بھلے چھوٹے ہوں یا بڑے۔ اور ویسے بھی کانتا بہت سمجھدار ہیں، مجھے ہمیشہ بڑی بہنوں کی طرح گائیڈ کرتی ہیں۔ اس نے مسکرا کر کانتا کو دیکھا تو وہ بھی جواباً مسکرائی۔ سامیہ البتہ اپنی چائے گھونٹ گھونٹ پی رہی تھی۔ کچن میں ایک بار پھر سے مکمل خاموشی پھیل گئی تھی۔ اسی وقت ولی کچن کے دروازے میں پھر نمودار ہوا۔ کانتا ایک منٹ میری بات سنیے گا پلیز۔ اس نے وہیں کھڑے ہو کر کانتا کو پکارا تو وہ اٹھ کر باہر کی جانب بڑھ گئی۔ سامیہ اپنا ناشتہ کر چکی تھی اور عمل کی بھوک مر گئی تھی، اسی لیے ان دونوں کا انتظار کیے بغیر وہ دونوں بھی اٹھ کر باہر کی جانب بڑھیں تو اب کہ شازیہ کا غصہ سوا نیزے پر جا پہنچا۔ کوئی ان کے ساتھ بیٹھ ہی نہیں رہا تھا، دوسرے لفظوں میں کوئی انہیں نئی نویلی دلہنوں کی طرح لفٹ ہی نہیں کروا رہا تھا۔ عمل تو جیسے بہت مجبوری کے تحت اس سے بات کر رہی تھی، اور گھر کے باقی افراد، ہاں باقی سب ٹھیک تھے اس کے ساتھ۔ ولی کا انداز بہت کھنچا کھنچا سا تھا، اسپاٹ اور محتاط، مگر ابھی ان کے آنے سے قبل کیسے وہ ان سب کے ساتھ ہلکے پھلکے انداز میں بات کر رہا تھا، تب تو اس کے چہرے پر ایسا کوئی تاثر ہرگز نہیں تھا۔ بس شاید باہر والوں کو دیکھ کر تیوری چڑھ جایا کرتی تھی اس کی۔ اس نے ہوں کہہ کر سر جھٹکا۔ دیکھا تم نے ان سب کو؟ ہمیں تو ایسے نظر انداز کیا ہے جیسے ہم ان میں سے ہیں ہی نہیں یہاں، جیسے ہم ہیں ہی نہیں یہاں۔ امینہ نے کہہ کر ایک کینہ پرور نگاہ کچن کے دروازے پر ڈالی۔ اور یہ عمل، بہت غرور ہے نا اسے اپنی خوبصورتی پر۔ ابھی بھی دیکھا کیسی سجی سنوری ہوئی تھی، اور ولی کھڑا تھا، مگر مجال ہے جو اس نے اپنے لہراتے بالوں پر دوپٹے کا ایک پلو بھی ڈالا ہو، اور لوگ مثالیں دیتے ہیں جی اس کی۔ وہ دونوں بھی ناجیہ سے کسی صورت کم نہیں تھی۔ اپنی قابل قبول صورتوں کو بہت تراش خراش کے بعد سجایا تھا، مگر پھر بھی عمل کے سامنے دونوں کہیں پس منظر میں چلی جایا کرتی تھی۔ اس کے سامنے بھلا کوئی ٹک بھی کیسے سکتا تھا؟ وہ تو دھلی چاندنی تھی، بے داغ اور خوبصورت۔ کچن سے باہر سامیہ نے ایک پل کو اسے ہاتھ سے پکڑ کر روکا تو وہ چونک کر اس کی جانب دیکھنے لگی۔ تمہاری دونوں بھابھیوں کے تیور ٹھیک نہیں لگ رہے مجھے عمل، احتیاط کرنا۔ عمل نے گہرا سانس لیا۔ تمہیں اب ٹھیک نہیں لگ رہے؟ میں تو جب سے آئی ہیں یہ دونوں تب سے بھگت رہی ہوں انہیں۔ عجیب طنز کرتی رہتی ہیں 24 گھنٹے۔ مجھے تو سمجھ نہیں آتا کہ میں نے کیا بگاڑا ہے ان کا۔ میں نے تو کبھی بھی کوئی سخت بات نہیں کی ان سے، ہمیشہ عزت کی ہے ان کی۔ اور پتہ ہے کل کیا کہا مجھے شازیہ بھابھی نے؟ کہتے کہتے اس کی آنکھیں بھرنے لگیں تو سامیہ چونکی۔ کیا کہا؟ وہ اسے گیسٹ روم میں لے آئی تھی ہاتھ سے پکڑ کر۔ کہہ رہی تھیں کہ انہیں بڑی تائی نے بتایا کہ میں ولی سے بہت بے تکلف ہوں۔ ایک آنسو ٹپکا اس کی آنکھ سے۔ سامیہ تو اس کی بات پر بہت چمکی ہی رہ گئی۔ کیا؟ انہوں نے کیوں ایسی بات کہی؟ ناجیہ ولی کو پسند کرتی ہے سامی، اسی لیے اس نے ایک کی چار لگا کر میرے بارے میں پتہ نہیں کیا کیا اپنی ماں کو کہا۔ ارجمن تائی تو جب تک ہر بات نگار تائی سے نہ کر لیں انہیں چین ہی نہیں پڑتا۔ انہوں نے نگار تائی کو بتا دیا، اور انہوں نے اپنی بیٹیوں کو۔ اب یہ بات پورے خاندان میں پھیلے گی اور پھر بی جان تک بھی پہنچے گی۔ سوچو ان کو کتنا دکھ ہوگا۔ اس نے بوجھل سی سانس خارج کر کے اپنی آنکھیں رگڑیں۔ سب کچھ بگڑتا جا رہا تھا۔ تو چندا پھر تم نے مجھے یہ سب پہلے کیوں نہیں بتایا؟ کیا بتاتی تمہیں میں؟ الٹا تم بھی تو پریشان ہو جاتی۔ اور ایک تو ارجمن تائی کے بیٹے نفیس نے زندگی عذاب کر دی ہے میری۔ سامیہ اس کی بات پر پھر سے چونکی۔ کیوں؟ کیا کیا ہے اس نے؟ اس دن وہ میرے کمرے میں آ گیا تھا، بہت آہستہ آواز میں اس نے کہہ کر گیلی سانس اندر کھینچی تو سامیہ کو لگا اس نے کچھ غلط سن لیا ہے۔ لیکن کیوں؟ بدتمیزی کی اس نے میرے ساتھ۔ کیا؟ سامیہ نے بے یقینی سے اس کا چہرہ ہاتھوں میں لے کر تھاما۔
उसकी रोई रोई सी शहद रंग आंखों का राज अब खुला था उस पर। हम सब रस्म करने जा रहे थे ताई के घर। मैं अपने कमरे में बाल बनाने आई तो वो भी मेरे पीछे आ गया। नीचे घर में इतना रश था सामी के किसी ने उसे आते ही नहीं देखा, मगर वली, उसने गहरा सांस लिया। सामिया उसी को ही देख रही थी। वली ने उसे देख लिया था मेरे कमरे में आते हुए। एक पल को वो रुकी तो सामिया ने उसके यख पड़ते हाथों को थामा। फिर क्या हुआ? फिर उसने मेरे कमरे में आकर उसे मारा। उसके घुटने से खून निकलने लगा था। मैं बहुत डर गई थी सामी। मुझे लगा वो उसे जान से मार देगा, मगर उसने नहीं मारा, क्योंकि वो जानता था कि मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है जिस्मानी तशद्दुद देखकर। उसने उसे कुछ भी नहीं कहा, मगर मुझे यकीन है कि वापस आकर उसने नफीस को नहीं छोड़ा होगा। पता है 2 दिनों से वो किसी तकरीब में भी शरीक नहीं हुआ। बाबा ने हसन ताया से पूछा तो वो कहने लगे कि नफीस सीढ़ियों से गिर गया, काफ़ी चोटें आई हैं, मगर मैं उसी वक्त समझ गई कि उसे ये चोटें कैसे आई थीं। उसने एक बार फिर गहरा सांस लिया। सामिया को बेख्तियार उस पर तरस आया था। और तुम कब से ये सब अपने अंदर लेकर बैठी हो? हाँ, मैं और क्या करती। वली फिर से अपने सर्द मोहरी के खोल में सिमट गया है सामी। और मैंने जितनी मेहनत से उसके और अपने दरमियान की दीवारों को गिराया था, वो अब फिर से हमारे दरमियान आ खड़ी हुई हैं। और अब इन दीवारों को गिराने का कोई रास्ता नहीं है। परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। उसने नफ़ी में सर हिलाया। अब कुछ भी ठीक नहीं होगा, कभी ठीक नहीं होगा सामी, कभी भी नहीं। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे बहुत बड़ी बदनामी मेरा इंतज़ार कर रही है, जैसे बहुत गलत होने वाला है कुछ। मेरा दिल बहुत बोझ तले है, लगता है फट जाएगा। मैं क्या करूं सामिया? उसकी बेसाख्ता हिचकी निकली थी। सामिया ने आगे बढ़कर उसे खुद से लगाया तो वो उसके कंधे से लगी मज़ीद रोने लगी। इतने दिनों बाद उसे कंधा मयस्सर आया था। भला वो कैसे अपने दिल का बोझ ना हल्का करती। कांता, अमल का ख्याल रखिएगा। मुझे पता नहीं क्यों वो कुछ ठीक नहीं लग रही। कांता ने एक पल के लिए उसका चेहरा देखा। थोड़ी देर कब्ल के स्पाट से वली के बरक्स कदरे मुख्तलिफ, परेशान सा। और तुम्हें क्यों होने लगी उसकी इतनी फिक्र? एकदम कांता ने बहुत सख्ती से कहा तो वली ने उसकी जानिब नासमझी से देखा। वो दोनों सब्ज़ाज़ार पर खड़े थे और सुबह की नरम सी धूप तिरछी होकर गिर रही थी। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। क्या नहीं समझे तुम? पिछले 3 दिनों से बिलखती रही तुम्हारी गैर मौजूदगी में वो वली। पिछले पूरे 3 दिन। उन्होंने अपने लफ्ज़ों पर जोर दिया। 3 दिनों से वो मुस्तकिल अजाब में है, तुम्हारी राह तक रही है, तुमसे बात करने की हिम्मत नहीं कर पा रही और इंतज़ार की सूली पर लटकी हुई है कि कब तुम उससे खुद बात करोगे। तुम्हें लगता है कि वो ठीक है, वो ठीक रहेगी। इस सारे अरसे में वो खुद के साथ उलझी हुई थी, मगर तुम्हें इससे क्या वली अहमद? तुम करो जो कर रहे हो, करते रहो। तुम्हें क्या फिक्र उसकी? वो कैसे भी रहे, जिए या मरे, लोगों की बकवास सुनती रहे, इससे तुम्हें क्या? तुम तो कभी इतनी हिम्मत करोगे नहीं कि आगे बढ़कर उसका हाथ थाम लो, उसके सबसे कमज़ोर लम्हात में उसका सहारा बनो। दुनिया अगर तुम्हारे और उसके दरमियान आ रही है ना, तो तुम भी आगे बढ़कर दुनिया से उसे छीन लो वली। मगर तुम ऐसा क्यों करोगे? उससे मोहब्बत नहीं करते ना तुम। तुम्हें सिर्फ खुद से मोहब्बत है, सिर्फ खुद की परवाह है तुम्हें। उसके साथ कुछ भी होता रहे, क्या फ़र्क पड़ता है? क्यों, ठीक कह रही हूँ ना मैं? आखिर में रुक कर बहुत बेरहमी से पूछा तो वली का दिल एक पल को कांप गया। आंखों में तकलीफ उभरी और ज़ब्त से दांत जम गए। मैं उससे सिर्फ इसलिए दूर हूँ क्योंकि मैं उसकी बर्बादी नहीं चाहता। आप लोग समझते क्यों नहीं हैं कि मैं कर्स्ड हूँ, मनहूस हूँ। मैं जहाँ जाता हूँ ज़िंदगियाँ निगल जाता हूँ लोगों की। मैं उसे अपने साथ इस मिट्टी होती जलील ज़िंदगी में रोल दूँ, वो जिसे मैं अपने साए से भी दूर रखना चाहता हूँ, उसे अपनी ज़िंदगी में जगह देकर तबाह कर दूँ। मैं किसी दुश्मन के साथ भी ऐसा नहीं कर सकता। और आप, उसकी आवाज़ कांपी, आप मुझे उस लड़की के साथ ऐसा करने के लिए कह रही हैं कि जिसकी ज़िंदगी के लिए वली 100 दफ़ा अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर सकता है। कांता चंद लम्हे कुछ ना बोल सकी। जानते हो क्या वली, तुम खौफज़दा हो, डरते हो तुम। एक बार फिर कांता ने बहुत हिम्मत करके उस पर चोट की तो वली की आंखें जलने लगी। हाँ, डरता हूँ मैं, खौफज़दा हूँ मैं कांता, बहुत बहुत खौफज़दा हूँ। उसे एक सांस की भी अजियत हुई ना, और इस अजियत की वजह मैं बना, तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा। मेरी ज़िंदगी की आखिरी ख्वाहिश यही है कि उसे उसकी ज़िंदगी में खुश देख सकूं, मुतमईन देख सकूं।
और इस सब को सोचते हुए मेरे जहन की तस्वीर में मेरा वजूद कहीं पर भी नहीं जचता उसके साथ। वो रेशम है और मैं टाट, वो आसमान है और मैं ज़मीन पर पड़ी खाक भी नहीं। मगर वो बेवकूफ़ लड़की, उसने रुक कर चेहरा ऊंचा किया और उसके कमरे की खिड़की पर नज़र डाली। वो बेवकूफ़ लड़की समझती ही नहीं है कुछ भी। जितना भी अपने रवैये से समझा लो, सख्ती कर लो, डांट दो, मगर उस सब का तो कोई असर ही नहीं होता उस पर। जब भी वो मेरी तरफ देखती है तो उसकी आंखें मोहब्बत के एहसास से इस कदर जगमगाती हैं कांता कि मैं डर जाता हूँ। मुझे लगता है मैं खुद को नहीं रोक पाऊंगा, और जब भी मुझे ऐसा लगता है तो मुझे खुद से नफरत हो जाती है, घिन आती है मुझे खुद से। तुम जुल्म कर रहे हो वली, खुद के साथ भी और उसके साथ भी। एक दफ़ा शादी करके तुम उसे उस हवेली की सियासतों से दूर ले जाओ तो वो सब भूल जाएगी। तुम क्यों अपनी और उसकी ज़िंदगी को अजाब बना रहे हो? वली ने जलती आंखें चंद लम्हों के लिए मूंद लीं। जलन अब उसकी कनपटियों से सिरायत करती सर के पिछले हिस्से में उतर रही थी। जुल्म हो चुका कांता, अब बस इंतकाम के उल्टे चक्कर बाकी हैं, जालिमों को उनके अंजाम तक पहुंचाने के लिए। कुदरत अपने उल्टे चक्कर शुरू कर चुकी है, जिसमें मेरी ज़िंदगी की कोई गारंटी नहीं। मेरी दुश्मनियां हैं, मेरा उठना बैठना बदमाश लोगों में है। बहुत से लोग घात लगाए बैठे हैं। आज मैं आपको बताता हूँ कि मेरी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। हो सकता है किसी को अंजाम तक पहुँचाते पहुँचाते मैं भी कहीं मर खप जाऊँ। कोई जनाजा भी नहीं पड़ेगा और ना ही किसी को मैं याद हूँगा। ऐसा ही होगा कांता, जल्द या बदेर, मगर होगा ज़रूर। और ऐसे में आप चाहती हैं कि मैं खुद को उसके साथ बांध लूँ? नहीं कांता, मैं ये नहीं कर सकता। ये जुल्म है, बहुत बड़ा जुल्म है। घबरा कर उसने नफ़ी में सर हिलाया तो कांता का दिल एक पल को लरस कर रह गया। कितनी खौफनाक बातें करता है ये लड़का। तुम ऐसी बातें मत किया करो वली, पुराने वाली कांता ने दुखी होते दिल से कहा। तो वो बदिक्कत मुस्कुराया, फिर उसकी जानिब देखा। उसकी खुश्क मगर गुलाबी आंखें देखकर कांता डर ही तो गई थी। ठीक है, मैं नहीं करूँगा आइंदा ऐसी बातें, मगर प्लीज़ उसका ख्याल रखिएगा। उसकी तकलीफ़ नहीं देखी जाती मुझसे। उसे समझाएं, अगर कोई मसला है तो मुझे बताए वो, मगर इस तरह अंदर ही अंदर ना घुले। मैं चलता हूँ, देर हो रही है मुझे। मज़ीद कोई भी बात किए बगैर वो आगे बढ़ गया तो कांता दुखी दिल से उसे जाता देखती गई। वो दोनों उनके दिल के करीब थे, मगर अब दोनों ही तकलीफ़ में थे, जिसके बाइस उनका अपना दिल भी ज़ख्मी होने लगा था। हाशिम ने छोटी सी आंखों को मज़ीद छोटा करके सामने खड़े शख्स को बगौर देखा। तुम तो कह रहे हो कि वली करम की मौत के वक्त वहाँ मौजूद था? उसकी आवाज़ में कोई अलार्म सा था जो बज रहा था। जी सरकार, आगे वाले ने गर्दन मज़ीद झुकाते हुए कहा तो वो पुरसकून बैठा। हाशिम एकदम धाड़ा था। और तुम मुझे अब बता रहे हो? वो सरकार, आप अपनी बहनों की शादी में मसरूफ़ थे, इसलिए मैंने आपको परेशान नहीं किया। जल्दी से घबरा कर वजाहत दी तो हाशिम को अपना सारा वजूद आग में जलता महसूस हुआ। मैं मसरूफ़ था, मर तो नहीं गया था ना? टेबल पर हाथ मारकर उसने चंद लम्हे गहरी सांस लेकर खुद को पुरसकून किया। जब तुमने उसे वहां मार कर फेंका था तो क्या करम जिंदा था उस वक्त? जी सरकार, जिंदा था। 15 मिनट बाद मौत हुई थी उसकी। 15 मिनट? वो फिर से दहाड़ा और फिर उठकर सामने खड़े शख्स को एक जोरदार मुक्का मारा था। वो पीछे को लड़खड़ा कर गिरा। 15 मिनट तक वो गाली दी, जिंदा रहा, और तुम मुझे अब बता रहे हो? अब बता रहे हो तुम लोग मुझे? हाँ? उसने टेबल पर रखी सारी चीज़ों को हाथ मारकर नीचे गिरा दिया था। फिर अपने लंबे बालों में हाथ फेरकर गुस्से को काबू किया। 15 मिनट तक वो जिंदा रहा तो उसने वली के सामने कुछ ना कुछ तो ज़रूर बका होगा। और अगर ऐसा है तो फिर वली अब तक क्यों खामोश है? वो खामोश तो रहने वाला बंदा है ही नहीं। फिर क्या चीज़ रोक रही है उसे? वो क्यों चुप करके बैठा है अब तक? अब के वो बालों में हाथ फंसाए खुद से बुड़बुड़ा रहा था। पजल का कोई टुकड़ा कहीं से गायब था और उसी टुकड़े की गैर मौजूदगी अब उसे सुकून नहीं दे रही थी। वली ने अपनी आंखों पर चढ़ा स्याह चश्मा उतारा और फिर एक होटल में दाखिल हुआ। शहर का बड़ा सा टाइल्स से चमचमाता होटल वसी रकबे पर फैला हुआ था। वो लॉबी से गुजरता मखसूस कमरे की जानिब बढ़ा और फिर लिफ्ट के जरिए ऊपर चढ़ता गया। लिफ्ट से बाहर निकला तो फिर टाइल्स से चमकते बाल को पार करने के बाद
हॉल को पार करने के बाद तवील राहदारी में चला आया। राहदारी के दोनों अतराफ में दूर दूर तक कत्थई रंग के दरवाजे थे जो उस वक्त बंद थे। कभी कोई एक शख्स किसी दरवाजे को खोलकर बाहर निकल रहा होता तो उसकी नज़र आगे बढ़ते वली पर पड़ जाती। वो एक बहुत महंगा 6 स्टार होटल था। उसने दरवाजे के बाहर पहुंचकर दरवाज़ा खटखटाया और फिर आहिस्तगी से दरवाज़ा खोलता कमरे के अंदर दाखिल हुआ। नर्म से जहाजी साइज बेड पर सुरमई चादर बिछी थी। खिड़कियों पर गिरे भारी पर्दे भी गहरे सुरमई रंग के थे। वो तो और पैरों तले बिछा कालीन भी उसी रंग का था। वो सुरमई शेड से ढका बिलाशुबा बहुत खूबसूरत कमरा था, मगर वली को उस सब में कोई दिलचस्पी नहीं थी। सो रुख सोफे की जानिब फेरा। उस पर कोई उधेड़ उम्र शख्स बैठा था। आओ वली आओ, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। जी सर, इंतज़ार के लिए माजरत। उसने आगे कदम बढ़ाए और जैसे ही उसका मुस्कुराता चेहरा देखा तो उसके अपने चेहरे पर भी नरमी बिखर गई। वो चेहरा हसन शाह का चेहरा था, दुश्मन के दोस्त का चेहरा। वो कदम कदम चलता ऐन उनके सामने आकर रुका था। फिर उनका नर्म मुस्कुराता चेहरा देखकर उसका अपना चेहरा भी इंतहाई नर्म पड़ गया। बैठो। हाथ से उसे सोफे की जानिब इशारा किया और फिर आगे बढ़कर सामने रखे टेबल पर पड़ी चाय बनाने लगे। वली खामोशी से बैठ गया। कैसे हो? असगर बता रहा था कि पिछले कई दिनों से काफ़ी परेशान थे तुम। खैरियत है ना सब? उन्होंने कप उसके आगे रखा तो उसने संजीदगी से उन्हें देखा। आप चाय बहुत अच्छी बनाते हैं सर, बिल्कुल असगर जैसी। उसकी बात पर हसन मुस्कुराए थे। वो जानते थे कि वली इतनी आसानी से कुछ भी यूँ नहीं बताएगा। जानता हूँ, अब जैसा बाप होगा बेटा भी तो वैसा ही होगा ना। खैर तुम कहो, कैसे हो? काम हवेली सब कुछ ठीक तो है ना? वो बहुत हल्के फुल्के अंदाज में पूछ रहे थे, फिर भी उनके अंदाज की एहतियात बखूबी महसूस की जा सकती थी। उसने चाय से एक घूंट लिया, फिर कप सामने टेबल पर रख कर उन्हें देखा। सब ठीक है सर, लेकिन आपने मुझे यहाँ क्यों बुलवाया है? हम ऐसी जगहों पर ऐसे ही नहीं मिलते। यकीनन कुछ ऐसा है जो हल्का फुल्का नहीं है। हसन की मुस्कुराती आंखें उसके चेहरे पर जमी थीं। उनमें हल्की, बहुत हल्की सी चुभन उतरी। अमल जमान कौन है वली? क्या पूछा आपने? उसे लगा उसने गलत सुन लिया है। बेयकीनी से आंखें खोले वो हसन का के इंतहाई खौफनाक हद तक संजीदा चेहरा देख रहा था। मैंने पूछा कि अमल जमान कौन है? आपको किसने बताया ये सब? उसकी आवाज़ किसी कुएं से आ रही थी। अपने राज का खुल जाना। उसका वजूद पल में सनसना उठा था। हाशिम ने। उसके सर पर गोया धमाका हुआ। फटी फटी निगाहों से हसन का चेहरा तकता वो सफ़ेद पड़ता जा रहा था। मुझे हाशिम ने बताया कि तुम किसी लड़की से मोहब्बत करते हो और उस लड़की का नाम है अमल ज़मान, शेख ज़मान नज़र की बेटी। अब बोलो, क्या सच है? क्या वाकई वो लड़की तुम्हारी ज़िंदगी में है या फिर कोई ट्रैप है हाशिम को फंसाने का? वो बहुत सुकून से बोलते उसका खौफ से सफ़ेद पड़ता चेहरा देख रहे थे। उन्हें अब किसी जवाब का इंतज़ार नहीं था। ठीक है, अगर तुमसे एक गलती हो गई है तो कोई बात नहीं, इस गलती को सुधारो और जो तुम्हारे दुश्मन के हाथ लग गया है उसे वापस लो। उसे कैसे? वो अब तक बेयकीनी से शल बैठा था। मैंने तुम्हें बहुत पहले समझाया था वली कि जब इंतकाम के सफ़र पर निकलते हैं ना तो किसी को अपनी कुर्बत नहीं दिया करते, किसी को अपना आदी नहीं बनाते, किसी के साथ मोहब्बत नहीं करते, क्योंकि फिर मौत की सूरत में सिर्फ आप नहीं मरोगे, आपके साथ वो भी मर जाएगा जिसे आपने खुद का आदी बनाया होता है। जानते भी हो कि आदतें कितनी जानलेवा होती हैं। आखिर में उन्होंने तुरहम से उसका चेहरा देखा था। मगर खैर, जो हो गया सो हो गया। हाशिम को मैं संभाल लूँगा। तुम अब जाकर इस सारे मसले को संभालो और मेरी एक बात याद रखना। वो रुके तो उसका सारा वजूद ही ठहर गया। साकित सी निस्वारी आंखें हसन पर जमी थी। अब उस लड़की से कोसों बल्कि मीलों दूर रहोगे तुम। उसे तकलीफ़ दोगे, उसे झिड़कोगे, उसके साथ बहुत बेरहमी से पेश आओगे। कोई नरमी बरतने की ज़रूरत नहीं है इस मामले में, क्योंकि ज़रा सी नरमी बहुत सी ज़िंदगियों को अज़ाब का गड्ढा बना सकती है, चाहे फिर वो उस लड़की की हो या तुम्हारी। सब राख का ढेर बनकर ख़त्म हो जाएगा। वो अब बहुत आहिस्ता सी सर्द आवाज़ में उसे समझा रहे थे और वली रेत की माने पल पल ख़त्म हो रहा था। वापसी का सारा रास्ता उसका वजूद साकित था।
यूं लगता था गोया उसका सांस अब तक रुका हुआ हो। चेहरा हद दर्जा सफ़ेद पड़ रहा था और माथे पर परेशानी की बहुत सी लकीरें फैली थीं। अब तक सारे काम उसके तय करदा थे। ज़रई ज़मीन का मसला, हाशिम की हसन शाह से दोस्ती, हाशिम और हुसैन का अंजाम, उसने सब तय कर रखा था। सब कुछ तयशुदा था। मगर फिर उससे गलती कहाँ हुई, कहाँ चूका वो जो हाशिम उसके हलक तक पहुँच गया और उसे इस बात की खबर तक ना हुई। उसे नुकसान पहुँचाने के लिए तो वो किसी भी हद तक जा सकता था। उसे नुकसान पहुँचाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता था। हर हद पार कर सकता था वो। उसने अहद किया था कि इस जंग में किसी को भी कभी भी अपना हिस्सेदार नहीं बनाएगा, किसी को भी इस सब में नहीं घसीटेगा, किसी को उसकी वजह से बेजा तकलीफ नहीं होगी। मगर वो गलत था। सब गलत हो रहा था, सब बिगड़ रहा था। अमल, या खुदाया अमल। उसका वजूद एक बार फिर जलजलों की जद में आ रहा था। स्टीयरिंग थामे हाथों की सख्ती और खौफ से सुकड़ती सांसें, उसकी हालत गैर होने लगी। वो क्या करेगा अब? अमल को कभी तकलीफ नहीं होनी चाहिए, उसकी वजह से तो कभी भी नहीं, हरगिज़ नहीं। अगर ऐसा हुआ तो वो कभी सुकून से मर भी नहीं सकेगा, कभी अपनी आंखें इस दुनिया से आसानी के साथ बंद नहीं कर सकेगा। लोग जीने का सोचा करते थे, मगर उसकी हर सोच, हर ख्याल और हर तख़य्युल में अगर कोई शय मुश्तरका थी तो वो उसकी मौत थी। उसकी हर सोच मौत से शुरू होकर उसी पर ख़त्म हो जाया करती थी। वो मरेगा, उसे मरना होगा, यही उसका अंजाम है, यही उसका इख्तिताम होगा। अगर वोंगसू तन्हा रह गया था तो मिलेगी अमल भी उसे नहीं। वो जल्द या बदेर किसी तारीख कब्र का हिस्सा होगा, लेकिन इससे पहले उसे अमल की ज़िंदगी को मामूल पर लाना होगा। उसकी ज़िंदगी उसकी वजह से तकलीफ़ दे बनी है, उसकी वजह से वो सारी मुसीबत का हिस्सा बनी है। कैसे वो इतनी बड़ी गलती कर सकता है? उसने ज़ोर से हाथ स्टीयरिंग पर मारा। परेशानी अब गुस्से में बदल रही थी। फ्रस्ट्रेशन का लावा अब अंदर से बहुत तेज़ी से बाहर को उबलने लगा था। उसका दुश्मन उसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी से वाकिफ़ था। उसकी कमज़ोरी, हाँ वो उसकी कमज़ोरी थी। उसे अगर किसी ने अब तक इंसान रखा था तो वो अमल थी। नहीं तो वो कब का जानवर बन चुका होता। वो भी हाशिम बन जाता, क्योंकि वो दोनों एक ही तस्वीर के दो रुख थे। वली और हाशिम एक ही किताब के दो सफ़े थे। अगर वो जानवर था तो सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे कोई मिला ही नहीं जो उसके अंदर के इंसान को इंसान रख सकता। मगर उसके पास अमल थी, वो जो पाकीज़ा सुबह की मानिंद रोशन सी थी, बहती हवा जैसी नरमी से उसके वजूद को तमानियत बख्शती थी। उसके अंदर जमी बर्फ़ को पिघला देती, उसके अंदर जमी बर्फ़ को पिघला दिया करती थी। हाँ वो वही तो थी, उसके अलावा और हो भी कौन सकता था भला। और उसने उसकी ज़िंदगी को मुश्किलात में फंसा दिया, उसको भड़कती आग के दहाने पर ला खड़ा किया। हाशिम की दुश्मनी से तो बड़े बड़े जालिम लोग भी पनाह तलब करते थे। अगर जो उसने अमल को कोई नुकसान पहुंचा दिया तो उसकी कनपटियां उबल पड़ी, दांत सख्ती से जम गए और सांस बहुत तेज़ हो गया था। गाड़ी की रफ्तार हर गुजरते पल के साथ बढ़ती जा रही थी। नहीं, वो ऐसा कुछ भी नहीं होने देगा। वो कभी उसको कोई नुकसान नहीं होने देगा। वो कभी उस तक कुछ भी नहीं आने देगा। वो सब तबाह कर देगा, तहस नहस कर देगा। अगर उसकी अमल को किसी ने छुआ भी तो सारा रास्ता उसके अंदर एक शदीद जंग छिड़ी रही थी। तेज़ी से दौड़ती गाड़ी रात की स्याही में अब डेरे की जानिब सफ़र कर रही थी। डेरे के बाहर पहुंचकर उसने तेज़ तेज़ कदमों से रविश को अबूर किया और फिर अंदर की जानिब भागता गया। उसे अभी कुछ काम करने थे। अंदर पहुंचकर उसने जल्दी जल्दी कुछ नंबर्स डायल किए और तेज़ी के साथ हिदायत देने लगा। उसकी पेशानी पर चमकता पसीना इस सारे अरसे में कहीं से भी वो नॉर्मल नहीं लग रहा था। चंद एक हिदायत देने के बाद उसने बहुत सारे फोल्डर्स उठाकर सामने टेबल पर रखे। उसी पहर उसका मोबाइल बजा तो वो यकदम चौंका। स्क्रीन पर ज़मान का नाम जगमगा रहा था। आज वलीमा था और वो यकीनन उसको बुला रहे होंगे, मगर उसने फ़ोन ऑफ करके एक तरफ डाल दिया। अभी वो किसी को भी कोई भी जवाब देने की पोजीशन में नहीं था। अभी उसे कुछ काम निपटाने थे, कुछ चलते चक्रों को उल्टा घुमाना था। हाँ, अभी उसे बहुत कुछ करना था।
رات کی سیاہی میں ڈوبا ڈیرا عجیب سی وحشت کا شکار لگ رہا